Hello students, how are you all? Welcome you all in a new video in the series of current electricity. So I think you must be enjoying our lecture and you must have understood the whole concept up to which we have discussed. In the last video we discussed the combination of resistors in series and parallel. So now we have two questions here. In this very lecture, in this very video we will be discussing two questions, two numericals based on the concept which we have learned in the previous lesson, equivalent resistance. And we are going to start a new topic of heating effect of electric current. So before moving ahead, let's solve two conceptual questions. And one more thing which I would like to tell you, that if you don't get the questions correctly, अगर आप इसको अच्छे से नहीं समझ पाते हैं सही, so there is nothing to panic, there is nothing to worry. We'll be discussing more conceptual problems, no more numericals after completing the whole theory concept. सबसे पहले हम जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है उस बेस पर दो क्वेश्चंस आज सॉल्व करते हैं, just to clear concept. Clear है? So in the previous lecture, in the lecture 7, we discussed the equivalent resistance and how to find the equivalent resistance of resistors when connected in series and parallel combination. And based on this topic, we'll be solving two questions here. So here in the circuit, we have three resistors. Two are connected in parallel. Here easily we can observe the two resistors, that is R1, say it's R2, say it's R3, and this one is R1. Let's assume this one is R1. So here two R2 and R3. Resistance R2 and R3 are connected in parallel and this R1 is connected in series with this parallel combination. And we have to start solving this equivalent resistance from this very parallel combination. Clear है? इसमें दो पार्ट है हमारे पास. एक पार्ट ये है, एक पार्ट यहाँ से यहाँ तक ये है, and the second part is from here to here. Clear है? दो पार्ट में हमें इसे solve करना है. And also we have 12 volt battery cell connected to this circuit. So what we have to find? We have to find हमें जो फाइंड करना है वो क्या करना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है. क्लियर है? तो सबसे पहले हम इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करते हैं. एंड वी नो दैट 12 ओम एंड 6 ओम आर इन पैरेलल. क्लियर है? तो सबसे पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करते हैं. एंड वी नो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ, टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ parallel combination, we have reciprocal of resistance connected, that is R2 plus R3 here. What is R2? 1 by R2 is 1 by 12 and 1 by R3 is 1 by 6. After solving this, what do we get? So after solving we get 3 by 12, and when we cut this from 4 ohm, 3 4 is 12, and after cross multiplying we get R equivalent is equal to 4 ohm. क्लियर है? तो हमारे पास यहां पर जो सॉल्यूशन आया है इक्विवेलेंट. हियर वी हैव फाउंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस टू रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल. नाउ वी हैव टू मूव अहेड एंड फाइंड आउट द मोर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन दिस 4 ohm इज कनेक्टेड टू दिस 8 ohm. नाउ वी कैन इजीली ऑब्जर्व कि जब हमारे पास जब हमने इसे सॉल्व कर लिया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, नाउ दिस रेजिस्टर्स द कॉम्बिनेशन बिकम्स लाइक दिस. ये दो रेजिस्टर्स इस तरह के बन जाते हैं जिसमें नाउ दिस वन इज 4 ohm and this one is 8 ohm already given. Now we can easily observe that this 8 ohm and 4 ohm are in parallel in series combination, and we can find out the series combination by using the equivalent resistance formula. वो क्या है? वो ये है कि when R1 and say it's R4 and it's R1 and R4 are in series. So how to find? We can easily add R equivalent बराबर 4 ohm plus 8 ohm, and it's come out to be 12 ohm. So equivalent resistance of whole circuit is 12 ohm. तो इस सर्किट के अंदर जो कॉम्बिनेशन मेरे पास है ये 12 ohm, 6 ohm और 8 ohm का, जिसमें मैंने इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर 4 ohm आता है इक्विवेलेंट, और फिर मैंने 8 को मिलाकर जब टोटल इक्विवेलेंट निकाला देन इट कम्स आउट टू बी 12 ohm. सो इक्विवेलेंट सर्किट इज 12 ohm. तो इक्विवेलेंट सर्किट से आप क्या समझते हैं? मैंने बताया था कि अगर मैं 12 ohm को, 6 ohm को और 8 ohm को यहां से हटा देता हूं, इफ वी रिमूव द रेजिस्टर्स ऑफ 12 ohm, 6 ohm and 8 ohm here and just add a single equivalent resistance of 12 ohm in the circuit, this 12 ohm will work similar to this combination. ये 12 ohm सेम काम करेगा, ये तीनों जो मिलकर कर रहे होंगे. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का यही मतलब होता है. नाउ अगर इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट लाया जाए, as we understood how to solve equivalent resistance of series and parallel ना. Now अगर मैं इसे थोड़ा सा ट्विस्ट ला देता हूं, मैं इसे रब कर रहा हूं, आप इसे नोट कर सकते हैं.
अगर मैं इसे थोड़ा सा ट्विस्ट लाऊं और इसमें क्वेश्चंस में थोड़ी सी बदलाव करूं, अगर मैं करंट फाइंड करने के लिए कहता हूं, नाउ इफ आई टेल यू टू फाइंड आउट द करंट, हाउ विल यू फाइंड? क्लियर है? आप कैसे फाइंड करेंगे? नाउ एक क्वेश्चन बी लेता हूं जिसमें मैं कहता हूं कि करंट थ्रू एटम। नाउ फाइंड आउट द करंट थ्रू एटम। आप एटम के करंट को कैसे फाइंड करेंगे? बहुत सिंपल है। एज वी नो, हमें दो चीजें ख्याल रखनी है। हमने ये पिछले लेक्चर में समझा है कि इन सीरीज क्या होता है? V चेंजेस एंड I do not change. I remains same. करंट मेरा नहीं बदलता है, बल्कि V पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में चेंज होता है। तो नहीं बदलता है का मतलब क्या हुआ? करंट नहीं बदलता का मतलब ये हुआ द करंट रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द सर्किट व्हेन द रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल। रेजिस्टर्स पैरेलल में है तो जो टोटल करंट होगा वही 8 ओम के थ्रू भी करंट पास होगा। क्लियर है? तो करंट थ्रू 8 ओम पूछ रहा है, तो यहां पर टोटल करंट सॉल्यूशन करता हूं मैं। टोटल करंट क्या होगा? व्हाट इज द टोटल करंट? हियर वी हैव टोटल रेजिस्टेंस कितना आया था? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 12 ओम ना, टोटल सर्किट का कितना आया था? 12 ओम। एंड नाउ वी हैव टोटल वोल्ट, दैट इज टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V is also 12 volt. Now if you find out the current through atom, total current comes out to be V by R, and this comes out to be 12 by 12 कट गया तो हमारे पास बचता है 1 एम्पियर। 1 एम्पियर इज द करंट पासिंग थ्रू द 8 ओम रेजिस्टर। क्लियर है? और ये क्यों मैंने सिर्फ V by R किया है? टोटल करंट, टोटल वोल्ट, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बाय टोटल resistance, because 8 ohm is in parallel, 8 ohm is in series, and the current flowing through this 8 ohm is the same as the whole circuit. होल सर्किट में जो करंट पास कर रहा है वही 8 ओम के थ्रू भी पास कर रहा है। बट व्हेन दिस करंट पासेस थ्रू दिस पॉइंट, तो इस जंक्शन पर यहां पर करंट मेरा इसके और इसमें जाकर बदल जाएगा। 8 ओम के अकॉर्डिंग कुछ और भी करंट होंगे, तो 6 ओम में कुछ और करंट पास करेंगे, बट द होल करंट वुड बी पासिंग थ्रू द सर्किट वुड बी ये 1 ओम। क्लियर है? 1 एम्पियर, सॉरी 1 एम्पियर करंट वुड पासिंग। तो आई होप कि आपको चीजें क्लियर आ गई होंगी। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको और कंसेप्ट समझाता हूं, आज समझने की कोशिश करता हूं कि मुझे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करता हूं, अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करता हूं इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो क्या होगा? एक क्वेश्चन सी लेता हूं मैं। इसमें हमें क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम एंड 6 ओम। देखिए अभी मेरे पास, अगर ये चीजें मैं कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और आपको समझाऊं पिछले लेक्चर का, तो मैंने बताया था कि इन पैरेलल क्या होता है? जिस तरह से सीरीज में करंट चेंज नहीं करता, इन पैरेलल V रिमेन्स सेम, V चेंज नहीं करता है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट चेंज करता है। तो मैंने आपको बताया अभी कि इस जैसे ही अभी मैंने करंट निकाला था, हमने भी करंट निकाला था, तो करंट, टोटल करंट 8 ओम क्यों वही था जो सर्किट में था। एंड व्हेन करंट पासेस थ्रू दिस जंक्शन, क्या होता है? यहां पर करंट बढ़ जाएगा, करंट यहां पर बढ़ जाएगा, बिकॉज ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है। एंड वी नो द इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट इज नॉट रिमेन सेम। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट इज नॉट एज इन सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर है? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में तो करंट वही रहेगा जो फुल सर्किट में है, यहां पर आके करंट बढ़ जाएगा, तो ये करंट मेरा I1 I2 फ्लो करेगा। बट वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस ना, वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस। इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो इसके पास होगा, जो इसके पास होगा। क्लियर है? पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, बट पोटेंशियल डिफरेंस फॉर दिस एटम वुड बी सेम एज दिस। नाउ फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस। अब मैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करता हूं, तो कैसे करूंगा? तो सबसे पहले हमारे पास जो हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला है इस सर्किट का, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का, वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो हमें R इक्विवेलेंट फाइंड करना है, जो हमें पता है ना, R इक्विवेलेंट फॉर पैरेलल, व्हाट वाज दैट? इट वाज 4 ओम। अगर आपको याद हो तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला था पैरेलल कॉम्बिनेशन इसका, फिर इसको ऐड किया था ना सीरीज के लिए। तो इसका हमारे पास जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, दैट कम्स आउट टू बी 4 ओम। अब हमारे पास 4 ओम है। नाउ वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस। Potential difference, since potential difference is same for this 12 ohm and 6 ohm in this parallel combination, हमारे पास करंट कितना है? हमारे पास टोटल करंट, टोटल करंट मिलाकर टोटल करंट मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये किसके लिए? ये
पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, नॉट द होल सर्किट, नॉट फॉर द होल सर्किट, जस्ट फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा हमें वो पुट करना है। करंट कितना था हमारा 1 एम्पियर जो फ्लो कर रहा था सर्किट में, एंड R equivalent is 4 ohm and it comes to be 4 volt. So what is the potential difference between this parallel combination? In this parallel combination potential difference comes out to be 4 volt. तो आपको यहां सिर्फ दो चीजें ख्याल करनी है कि सीरीज और पैरेलल में क्या होता है कि सीरीज में मेरा करंट चेंज होता है, सीरीज में मेरा पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है, बट पैरेलल में मेरा करंट चेंज होता है, बट टोटल करंट तो वही 1 ओम होगा ना, 1 एम्पियर होगा। तो मैंने 1 एम्पियर करंट और 4 यहां पर रेजिस्टेंस क्या लिया है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर है? तो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। मैंने 3 क्वेश्चंस लिया, काफी कॉन्सेप्ट जो इजी कॉन्सेप्ट है पहले मैंने वो क्लियर करने की कोशिश की है। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन और कांसेप्ट को और क्लियर करते हैं। हियर वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पर क्वेश्चंस भी काफी इजी है। नाउ वी हैव टू फाइंड, इसमें सिर्फ हमें क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अगर आप यहां देखेंगे, नाउ वी हैव अ लॉट ऑफ रेजिस्टर्स अटैच्ड, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं यहां पर रेजिस्टर्स के। मैंने पूरा सर्किट नहीं बनाया, सिर्फ रेजिस्टर्स बनाए यहां पर। तो यहां पर 2 पॉइंट के बीच में एक 6 ओम, 6 ओम, 6 ओम, 6 ओम एंड 6 ओम, ऑल द रेजिस्टर्स कनेक्टेड आर इन 6 ओम। सबसे पहले आप यहां पर नोट करें कि 2 पॉइंट के बीच में कौन से ऐसे 2 रेजिस्टर्स हैं जिन्हें पहले हम सॉल्व कर सकते हैं। वी कैन नॉट सॉल्व 6 ओम बिकॉज 6 ओम इज अ डिफरेंट वन connected in series, and here we cannot solve 6 ohm because 6 ohm is not connected to this combination. So we have to find out the parallel combination easily which we can solve. तो जो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं वो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है 6 ओम का और 6 ओम का। तो सबसे पहले हमें इन दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करना होगा। तो हमने क्या देखा कि यहां पर पहले बात डायग्राम से हमें ये चीज क्लियर है, R1 एंड R2 इन पैरेलल। अगर आप देखें तो यहां पर R1 एंड R2 दो में नाम दिया है ना, दोनों पैरेलल में हैं। इफ दे आर इन पैरेलल, हाउ टू सॉल्व द पैरेलल कॉम्बिनेशन? सिमिलरली R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 by R1 plus 1 by R2 and it comes out to be 1 by 6 plus 1 by 6 and it's 3 ohm. क्लियर है? तो जो मेरे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो 3 ओम है। 3 ओम है किसके लिए? इस सर्किट के लिए, इस सर्किट के लिए। तो अब हमारा सर्किट कैसा बन जाएगा? अब हमारा सर्किट क्या कुछ इस तरह का नहीं हो जाएगा क्या? अगर इसे मैं सॉल्व कर दिया हमने तो ये हमारा सर्किट, सेकंड सर्किट इस तरह का हो जाएगा। ये हमें ये बनाना नहीं है, समझने के लिए मैं आपको समझा रहा हूं ये चीजें। इस तरह से ये सर्किट जो पहले था वो तो रह गई, साथ साथ ये और ये, बिकॉज वी हैव सॉल्व दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड कम्स आउट टू बी 3 ओम। ये 3 ओम बन गया और ये तो पहले से 6 ओम है, ये भी 6 ओम है, ये भी 6 ओम है। क्लियर है? नाउ अब ये अगर मैंने इसे सॉल्व कर दिया तो ये ऐसा बन गया। अब मैं देख रहा हूं कि वी कैन इजीली सॉल्व दिस सीरीज कॉम्बिनेशन। इस सीरीज कॉम्बिनेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सेकंड पार्ट में हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। नाउ सिंस 6 ohm and 3 ohm resistor in series, so R equivalent to, ये फर्स्ट R equivalent था, ये फर्स्ट R equivalent 2 है, वो क्या होगा 6 ohm प्लस 3 ohm, that comes out to be 9 ohm। क्लियर है? तो इन दोनों का मैंने जब निकाला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो कितना बन गया? वो 9 ohm आ गया। तो अब हमारा सर्किट किस तरह का दिखेगा? अब ये कुछ इस तरह का दिखेगा। ये 6 ohm, ये 6 ohm एंड ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अब 9 ohm का हो गया। ऐसा दिखेगा ना? बिल्कुल, जो कि हमने इसे सॉल्व किया पहले तो ऐसा हो गया, फिर इसे इन दोनों को सॉल्व कर दिया तो ये सर्किट ऐसा हो गया, ये रेजिस्टेंस ऐसे हो गया। नाउ अब आप देखिए, अगर यहां पर आप देखें, अगेन वी हैव 6 ohm and 9 ohm रेजिस्टर्स। देखिए तो ये पहले क्वेश्चंस की तरह हो गया ना। नाउ वी हैव द कॉम्बिनेशन एज वी हैव, नाउ वी हैव कॉम्बिनेशन similar to the first question which we just have solved, now this combination is similar to the first question which we have just solved na? So let's move similarly. We have 6 ohm and 9 ohm parallel के अंदर है। easily we can find a equivalent, थर्ड फाइंड कर रहा हूं इक्विवेलेंट, वो कितना हो जाएगा 1 by 6 plus 1 by 9 and comes out to be 18 by 5 ohm।
18/5 ओम। क्लियर है? 18/5 ओम आ जाएगा। ये तो ऐसे सॉल्व करने के बाद R इक्विवेलेंट आना है। मैं आपको अच्छे से क्लियर समझा देता हूं। इट्स कम आउट टू बी 5/18 ओम एंड R इक्विवेलेंट थर्ड बराबर 18/5 ओम। क्लियर है? नाउ जब सारा हमने सॉल्व कर लिया तो अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ सर्किट में कुछ इस तरह का सर्किट बचेगा। इसके बाद कैसा बचेगा? ऐसा बचेगा। ये 6 ओम का होगा और मेरे पास ये 18/5 का होगा। नाउ वी कैन फाइंड दिस बाय, हमने इसलिए आसानी से फाइंड कर सकते हैं इससे, बिकॉज दिस बोथ आर द रेजिस्टर्स आर इन सीरीज में है ना। नाउ R इक्विवेलेंट फाइनल है ना, R इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा? हम निकाल सकते हैं सीरीज में दोनों, 6 प्लस 18/5, and if we solve this equation we find out R equivalent to be 48/5 and comes out to be 9.6 ohm. Clear है? 48/5 and R equivalent is equal to 9.6 ohm. क्लियर है? तो हमने इस सर्किट को कैसे सॉल्व किया? सबसे पहले हमने उस रेजिस्टर्स को लिया जिसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते थे। पैरेलल कॉम्बिनेशन को हमने देखा, इन दोनों को सॉल्व किया, फिर इनको सॉल्व करने के बाद रेजिस्टर्स कुछ इस तरह का हो गया, इन दोनों को सीरीज में सॉल्व किया, फिर उसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व किया, फिर सीरीज को सॉल्व कर दिया। तो इस तरह से हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। आई थिंक इन द नेक्स्ट वीडियोस, in 1 or 2 videos, we would have completed our lessons, theory concept, and then after we will start solving different numericals based on this concept of electric current and different topics. Clear है?